Good morning, students. Today we will start chapter 5, Beautiful World of Birds. Beautiful World of Birds. In this chapter, we will study about birds. So, what helps a birds to fly? Types of feathers, है ना? Birds के कौन कौन से किस किस टाइप के feathers होते हैं? And some birds fly to different extents. Nest of birds, birds that do not fly at all, migratory birds. So, this is the world of birds. So, let's start our chapter, Beautiful World of Birds. Name the birds you have seen. Also, tick the place where you have seen them. You have to write birds name in this column. Which birds you have seen. जो भी birds आपने देखा है उसका यहाँ पे नेम लिखना है. वो आप स्पैरो लिख सकते हैं, बुलबुल लिख सकते हैं, ठीक है. जो भी बर्ड्स, किसी ने पिकॉक देखा होगा, सो यू कैन राइट दैट टाइप ऑफ बर्ड्स नेम ऑल्सो. Okay, and tick the place where you have seen. That means place in my house, flying in the sky, on a tree, in a water. So these are the places. So and this here is bird's name, and here you will tick where you have seen this. Okay, all birds have wings and two legs. Birds are the only animals that have feathers. A bird's body consists of head, trunk, wings, legs and a tail. So these are the parts of body of birds. Birds के ये सारे बॉडी होते हैं, ठीक है. जैसे आप अपने बॉडी में हैंड, लेग, फिंगर्स, ये सारी चीज़ें काउंट करते हैं ना, उसी तरह से बर्ड का जो मेन बॉडी पार्ट होता है ये सारे होते हैं: हेड, ट्रंक, विंग्स, लेग्स एंड टेल. What helps a bird to fly? बर्ड फ्लाई कैसे करती है, उड़ती क्यों है? चलो देखते हैं इसमें क्या है. A bird flies with the help of its wings. The wings have feathers attached to them. Here is wings. Birds have two wings, है ना. यहाँ पर दो wings आप देख सकते हैं. It has two wings and have feathers attached. Feathers, these are the feathers. It is layer of feathers. ये जो होते हैं ना इस तरह से बर्ड के इस ये लेयर बने हुए होते हैं, feathers के लेयर बने होते हैं जो इसके wings से अटैच होते हैं. And it has boat shaped body which helps to fly in air easily. ये इसका बोट शेप बॉडी है जिसकी मदद से ये स्काई में इजीली फ्लाई कर पाते हैं. इट्स बोन्स आर hollow and filled with air. This makes it light. Do you know what is the means of hollow? Hollow means इसके जो बोन्स होते हैं बहुत ही हल्के होते हैं, ठीक है. मतलब वो खोखले होते हैं, बहुत हल्के होते हैं और उसमें क्या एयर फिल्ड होता है, ठीक है. हवा फिल होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी हल्का होता है और लाइट होता है. तो ये बर्ड को हेल्प करते हैं उड़ने में, ठीक है. A bird has strong muscles that move the wings up and down. This is the wings. I taught you this is the wings. It will up and down, ठीक है. ये मूव करता है ऊपर नीचे. आपने चिड़ियों को उड़ते हुए तो ज़रूर देखा होगा. तो ये जब विंग्स ऊपर नीचे करते हैं तो ये इसकी वजह से ये उड़ पाते हैं. तो इनके जो मसल्स होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं. इसको हम लोग कहते हैं फ्लाइट मसल्स, है ना. फ्लाइट मसल्स उड़ने वाले मसल्स हैं इनके पास, तभी तो ये फ्लाई कर पाते हैं. इट्स टेल हेल्प्स इट टू चेंज इट्स डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट. इट इज़ टेल, है ना, ये इसको डायरेक्शन चेंज करने में हेल्प करती है ना. ऐसा नहीं है कि बर्ड अगर उड़ना स्टार्ट की तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सीधा उड़ती जा रही है, ये भी अपना डायरेक्शन चेंज करती है. तो दिस टेल हेल्प्स देम, ठीक है. ये टेल इनकी हेल्प करता है डायरेक्शन चेंज करने में, इसकी दिशा को चेंज करने में. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. बर्ड कैन फ्लाई इन एनी डायरेक्शन. ये किसी भी डायरेक्शन में फ्लाई कर सकती है, ठीक है. सो हियर इज पार्ट्स ऑफ बर्ड्स बॉडी. लेट्स सी. आई, बीक, ट्रंक, दिस इज पार्ट ट्रंक, ठीक है. क्लॉ, टो,
flight feathers, wings. Okay, this is parts of bird's body. Types of feathers. So birds have different types of feathers. इनके जो feathers होते हैं, इनके पंख होते हैं, वो different type के होते हैं. So different birds have feathers of different colors. Birds have mainly 3 types of feathers: flight feathers, down feathers, body feathers. Flight feathers. Some feathers are long and flat. They remain attached to the wings and the tail. They help the bird to fly and are called flight feathers. Here is a picture of flight feather. ठीक है, ये जो feather होते हैं flight feather टाइप के, जो ये feather हैं, ये long होते हैं और flat होते हैं. ठीक है, flat मीन्स ये बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं दिखता है. ठीक है, ये फ्लैट है. एंड दे रिमेन अटैच द विंग्स एंड टेल. इसका ये जो पार्ट होता है ये विंग्स और टेल से अटैच होता है. एंड दे हेल्प द बर्ड टू फ्लाई. ठीक है, ये बर्ड को फ्लाई करने में मदद करता है. ये है फ्लाइट फेदर्स. सेकेंड वन, डाउन फेदर्स. Some feathers are short and soft. They act like a warm sweater. They keep the bird's body warm in cold weather. This type of feathers is called down feather. ये जो feather होता है ये छोटे छोटे होते हैं और soft होते हैं. ये जनरली उन birds के होते हैं जो कोल्ड रीजन में होती हैं बर्ड्स. ठीक है, जो ठंडे जगह पर बर्ड्स पाए जाते हैं उनके ये फेदर्स इस तरह के होते हैं. ये एक स्वेटर की तरह उनका काम करता है, उनके बॉडी को वार्म रखने में हेल्प करता है. इट इज़ डाउन फेदर. ओके, नेक्स्ट वन इज बॉडी फेदर. बॉडी फेदर्स cover the body of the bird. They give shape to the bird's body. Here is a picture of body feather. Okay, ये birds को उनके शेप देने में, बर्ड किस तरह की शेप होती है, जैसे ये सारे शेप है ना, ये इस तरह का शेप देने में उसको मदद करता है. इट इज़ बॉडी फेदर. ठीक है, सो दिस इज 3 टाइप्स ऑफ feathers. Birds fly to different extents. different birds are flies different type. मतलब अलग अलग के जो भी बर्ड हैं ये सब इनका उड़ने का क्राइटेरिया अलग अलग होता है. ये नहीं कि हर एक बर्ड हाइट तक उड़ सकती है. ठीक है, या कुछ ऐसे भी बर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा हाइट पे नहीं जा सकते हैं. ये डिफरेंट एक्सटेंट हैं, बर्ड के क्राइटेरिया डिवाइडेड हैं. सो लेट्स सी. हियर इज अ पिक्चर ऑफ क्रेन and pigeon. These both type of birds can fly over long distances. ये जो दोनों टाइप के बर्ड्स हैं ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस मतलब ये काफ़ी दूर तक ये फ्लाई कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ अदर बर्ड की, जैसे स्पैरो आप जो अपने आसपास देखते हैं, तो दे कैन नॉट फ्लाई इन अ लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, ये सब बहुत ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाते हैं. बट these crane and pigeon type of birds fly over long distance. Next type of it here, cock and a hen. The cock and the hen fly over very short distance. Short means ये तो आप देखे होंगे, वॉच तो ज़रूर किए होंगे. बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ बर्ड्स ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं तय कर पाते हैं, ना ही ये बहुत ऊंची हाइट पर भी ये फ्लाई कर पाते हैं. ठीक है ना, तो दैट इज़ वाई शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब ये बहुत कम ऊंचाई तक ही उड़ पाते हैं और तुरंत ये नीचे आ जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप एन ईगल अ वल्चर. द ईगल एंड द वल्चर फ्लाई एट ग्रेट हाइट्स. ठीक है, ग्रेट हाइट्स मीन्स ऊंचा. ठीक है, कभी भी आप इसको उड़ते हुए अगर देख रहे होंगे, जो बर्ड्स आपको बहुत छोटे छोटे नज़र आते हैं वो ये ईगल और वल्चर होते हैं. ठीक है ना, बिकॉज ऑफ दे फ्लाई
एट ग्रेट हाइट्स, बहुत ऊंचाई तक, बहुत ऊपर तक ये जा सकते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बर्ड्स, ये हाइट पे नहीं जा सकते हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी, ठीक है ना, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। ये ग्रेट हाइट तय करते हैं, ऊंचाई पर बहुत जा सकते हैं, पर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं कर सकते, ये दूर, बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ स्पैरो, अ बुलबुल। द स्पैरो एंड द बुलबुल फ्लाई एट लो हाइट्स, ठीक है। ये तो छोटे छोटे बर्ड्स हैं, ये लो हाइट्स, ये मतलब बहुत ज़्यादा इसकी तरह बहुत कम भी नहीं, बट ये मतलब मीडियम साइज, मीडियम टाइप के बर्ड्स हैं जो लो हाइट्स, लो डिस्टेंस, इतना ये फ्लाई कर पाते हैं, ओके। Birds that do not fly. Some birds cannot fly at all. So which type of birds is this? A penguin and ostrich. ठीक है, birds के ही shape के हैं but it cannot fly. So they move on land with the help of their legs. These are called flightless bird. ठीक है, इनको flightless बोलते हैं क्योंकि ये उड़ नहीं पाते हैं। कीवी, ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड emu आर फ्लाइटलेस बर्ड्स, ठीक है। ये सारे बर्ड्स फ्लाई नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं फ्लाई कर पाते हैं, ओके। सो दीज आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ बर्ड इज दिस aquatic birds. There are many birds that spend most of their time in water. These birds are called aquatic birds. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड इन वाटर, ये सब पानी में ही ज़्यादा समय अपना बिताते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एक्वेटिक बर्ड। ऐसा नहीं है कि पानी से बाहर नहीं आते हैं, ठीक है, आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे स्पेंड इन वाटर, इट इज़ कॉल्ड एक्वेटिक बर्ड्स। दे हैव ऑयल ग्लैंड्स दैट कीप देयर फेदर्स वाटरप्रूफ, ठीक है। इनके ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, ठीक, इस यहाँ पर ऑयल ग्लैंड्स होते हैं जिसकी वजह से इनका फेदर वाटरप्रूफ होता है, मतलब ये भीगता नहीं है, ठीक है। वाटरप्रूफ का मतलब जिस पे वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता है, ठीक है, वो वाटरप्रूफ है। नहीं तो अगर इनके फेदर वेट हो जाएंगे, गीले हो जाएंगे, तो ये वाटर में सिंक करने लगेंगे ना, ये डूबने लगेंगे, ठीक है। इनका फेदर्स जो होता है वो वाटरप्रूफ होता है इनके ऑयल ग्लैंड की वजह से। द ऑयल फ्रॉम दीज ग्लैंड्स prevent their feathers from getting wet. Ducks, swans, gulls, pelicans and cranes are aquatic birds. They have webbed toes या feet कहते हैं, ठीक है, that help them to swim. In third chapter I taught you about वेब्ड फीट, बताया था ना। वेब्ड फीट जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक बर्ड होते हैं, उनके वेब्ड फीट होते हैं जिसकी वजह से वो वाटर में स्विम कर पाते हैं, ठीक है। उनको उनकी हेल्प होती है स्विमिंग करने में। जो बर्ड्स फ्लाई करते हैं उनके वेब्ड फीट नहीं होते हैं, इसलिए वो वाटर में स्विम नहीं कर पाते हैं, वो लोग एक्वेटिक भी नहीं होते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बर्ड्स, डक, स्वान, गर्ल्स, ये सारे एक्वेटिक हैं जो मोस्ट टाइम अपना वाटर में बिताते हैं, ओके चिल्ड्रन। In next video we will see other topics about birds, that is nest of birds, okay, which type of nests having birds, ये हम देखेंगे। अलग अलग birds के अलग अलग nest होते हैं, okay children। and on Saturday your test is planned. आपका जो इससे पहले वाला चैप्टर था उसका टेस्ट होगा सैटरडे को। So I hope you are learning your chapter properly, okay, and be ready for your test, okay children. Thank you.